Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 7 which is integers. यानी कि अब इंटीजर्स में हमें क्या पढ़ना है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। आपके पास नॉर्मल नंबर्स है ना, जब उन नंबर्स के पास आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो कोई साइन हम ऐसा सच मेंशन नहीं करते, सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, बट जब आप स्पेसिफिकली माइनस का साइन वहां पर रिप्रेजेंट करोगे तो इट मीन्स कि वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। Till now we have studied positive numbers starting from 0, but there are numbers before 0 and they are negative numbers. Number greater than 0 are called positive numbers and number less than 0 are negative numbers. On a number line, greater number lies on the right side and lesser number lies to the left of the given number. So all negative numbers lie to the left of 0 and all positive number lie to the right of 0. It means that 0 is your middle point and towards right hand side from the 0 we have RHS, we have positive, and then left hand side we have negative numbers. Okay. Now for every positive number there is a corresponding negative number. Integers are numbers with no decimal part or fractional part. Integers include all negative and positive numbers including 0. So -5, 0, 1, 8, 5, 8 etc. are integers. Pick out the integers. तो integers क्या होंगे आपके? Integers आपके -86, 25 and 0. यहाँ पर decimal हमारा नहीं होगा, ये आपके numbers नहीं होंगे, ठीक है? Comparing integers, we can use a number line to understand the comparison of numbers. Comparison of integers. The number increases as you go right and decreases as you go left. यानी कि आप जितना राइट हैंड साइड पर मूव करोगे उतना ज्यादा नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी और जितना ज्यादा आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करोगे उतना ज्यादा जो आपका नंबर है उसकी वैल्यू लो होगी, ठीक है? So when we compare integers, the numbers on the right of the another number is bigger and the number on the left of another number is smaller. So compare 4 and -3. So 4 will be on the right hand side, which means the greater one, and the greater one, and -3 towards the left hand side, which means lesser one. So comparison करेंगे तो 4 is greater than compared to -3. Now we have both negative numbers. So negative numbers में भी जिसके लिए आपको ज्यादा शिफ्ट करना पड़े लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट मीन्स कि वो हमारा स्मॉलर होगा. तो इन केस therefore -4 is greater than -7. Arrange 4, -2, 1, 0, -8, 8 in ascending order. तो 0 आपका सबसे असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर द स्मॉलर वन इज -8 क्योंकि इसके लिए आपको सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर जाना पड़ रहा है. नेक्स्ट वी हैव -2 किधर नेक्स्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके छोटे नंबर्स होंगे -8, -2, 0 in middle, then 1, 4, 8. All negative numbers are less than the positive numbers. Now addition and subtraction of integers. हम addition और subtraction कैसे करेंगे? To add we move towards the right of the number on the number line and to subtract we move to the left on the number line. के addition के लिए हम right side पे move करेंगे और subtraction के लिए हम left side पे move करेंगे. तो यहाँ पर हमें addition बोला है तो what we have to do, we have to shift to the right hand side, move towards the right hand side. -3 and 2, 1, 2. क्या आंसर आया आपको? -1. तो ये आपका आंसर है. इस तरीके से आप मूव करोगे. नेक्स्ट आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि -3 + 2. तो माइनस एंड प्लस, ऑलवेज माइनस, ऑलवेज रिमेम्बर माइनस एंड प्लस. क्या करना होगा आपको इस केस में? आपको यहाँ पर माइनस ही करना पड़ेगा. तो आप माइनस करोगे और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो साइन आपका -1 ही आएगा. बाकी या फिर साइन के लिए ये होता है कि जो नंबर आपका बड़ा होता है साइन उसका आता है. आप भी नंबर लाइन वाले को ज्यादा कंसीडर करो, ठीक है? Subtract 2 from -1. तो सब्ट्रैक्ट करना है तो राइट से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा. सो 1 -1 -2. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -3. माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया -3. एड 2 एंड -3. तो एड बोला है तो कहाँ शिफ्ट करेंगे? राइट, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे ना. एड -2. तो 1 2 3. आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 से मूव करेंगे, सॉरी, तो 2 से मूव करा हमने राइट, तो आपका आ जाएगा -1. अब एड -3 एंड -2. सो -3 एंड 2. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपका जो नंबर आप वहां से शिफ्ट कर रहे हो तो 1 2, आपका आंसर आएगा -5, ठीक है? कंपेयर अब 2 एंड 5. तो ये तो ऑल बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो 5 हमारा बड़ा होगा. -5 -8 के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा मूव करना होगा तो -5 बड़ा होगा. आप इसे एक तरीके से ये भी याद रख सकते हो कि जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं जो छोटे होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है?
तो अगर नॉर्मली देखूं तो 5 इज स्मॉलर कंपेयर टू 8, बट यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि छोटा वाला बड़ा होगा। अब यहाँ पर -30 -42, विच वन इज स्मॉलर? 30, तो 30 हमारा बड़ा होगा। 30 एंड -36, विच वन इज बिगर? 36। इक्वल नहीं कंसीडर करेंगे, माइनस का साइन है, बहुत छोटा होगा। पिक आउट द इंटीजर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके इंटीजर्स है 18, 24 एंड 37। यहाँ पर 14, 0 एंड 3। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपको -40 दिख रहा है, तो विच इज स्मॉलर, क्योंकि नेगेटिव में है। उसके बाद -25, देन 15 एंड देन 25, ठीक है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा है आपका 3, उसके बाद है 12, फिर 11, फिर 0, -11 और फिर 18, -18, ठीक है। एड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। तो आप नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, 7 और ये आपका -1 माइनस। तो ऐड बोला है तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट हैंड साइड पे मूव करना है ना हमें, तो -2 करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, विच नंबर इज कमिंग? 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब मैं हर बार नंबर लाइन नहीं बनाऊंगी, मैं आपको आंसर बता रही हूँ, नंबर लाइन आप बनाओगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। अब देखो यहाँ पे -4 + 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -3। आप नंबर लाइन बनाओगे और वहां पर बताओगे। 8 और 8 ये तो नॉर्मल है, तो आप इन्हें डायरेक्ट ही प्लस कर दोगे, तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करोगे, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका +34 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स। के इंटीजर्स की एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है? द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इज 23 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर फॉल्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस, वी कैन राइट इट एज 23 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस टू गेट द करंट टेम्परेचर। यानी कि फॉल्स यानी कि लो, यानी कि गिर गया, ठीक है। नाउ राइट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स। 8 डिग्री अबव 0 डिग्री, तो अबव मीन्स पॉजिटिव। 30 मीटर बिलो सी लेवल यानी कि -30। रवि हैज 150 इन हिज पिगी बैंक, ही विड्रॉन 14, राइट दिस इन इंटीजर्स। तो 150 विड्रॉ कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो -14, ठीक है। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स। तो आ डिपॉजिट ऑफ 150, तो ये हो जाएगा +150। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। अ विड्रॉल ऑफ 250 यानी कि विड्रॉल मीन्स बाहर निकालना, -25 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम -2 ऑन द नंबर लाइन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 25 माइनस, इस तरीके से करोगे। फाइंड द इंटीजर्स फॉर द फॉलोइंग। अपोजिट ऑफ 71, 71 का इंटीजर क्या होगा, -71। अपोजिट ऑफ माइनस यानी कि जो भी आपके पास है उसका अपोजिट, 71 तो -71, -42 तो इसका अपोजिट 42। 4 मोर देन -7, -7 से 4 मोर, तो 8 9 10 11, तो -11 होगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका +11, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट वी हैव आशी हैड 300 इन हिज बैंक अकाउंट, ही विथड्रॉ 200 फ्रॉम द बैंक, एक्सप्रेस दिस इंटीजर। 300 थे बैंक अकाउंट में, 200 बाहर निकालिए, तो माइनस का साइन आएगा, तो आपके पास 100 बचेंगे और इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये पॉजिटिव 100 होगा, ठीक है। एक्सप्रेस एज इंटीजर्स 25 मीटर बिलो सी लेवल, तो -25 मीटर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर विदाउट टेकिंग द साइन इनटू कंसिडरेशन। यानी कि अगर यहाँ पर -7 है तो क्या होगा, ये 7 होगा, फिर कोई साइन नहीं आएगा। माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू जब आपसे बोल दी जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई साइन नहीं लगाना है। अर्थमेटिक रूल्स फॉर इंटीजर्स। टू ऐड टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। अब ये अर्थमेटिक रूल है, अब हम नंबर लाइन का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो प्लस एंड प्लस अगर होगा तो हमें प्लस ही करना है, माइनस और माइनस होगा तो भी हमें प्लस करना है, बट साइन, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस एंड माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस, और माइनस और प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। इफ द साइन ऑफ बोथ इंटीजर्स आर सेम, देन ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ द नंबर्स एंड असाइन द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। दोनों सेम है तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, और जो नंबर बड़ा है, यहाँ पे 4 है, उसका साइन दे दीजिए। माइनस माइनस आप प्लस करोगे, साइन जिसका बड़ा होगा वो दोगे, ठीक है। टू add two integers with different sign. If the sign of both integers are not same, one positive and other negative,
Then subtract the absolute value from the both the numbers and assign the sign of the greater value. So 2 minus 4 आपका आंसर 2 आएगा, भूल जाइए अभी कि वैल्यू क्या है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू में देख रहे हो तो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो आपका साइन जो 4 का है वो यहाँ पर लगेगा, -2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस -7, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 4 प्लस 7 आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस करोगे 3 आएगा। सिंस द टू इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइन, द एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 7 - 4 इज 3, आपका आंसर आएगा 3। 7 इज बिगर और माइनस साइन है तो -3। सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम -5, तो -5 - 14, माइनस माइनस प्लस 19, साइन उसका आएगा जो कि बड़ा है विच इज 14। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर मैं बतानी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी, -7 की 7, 8 की 8, इस तरीके से आप बता दोगे। एड द फॉलोइंग, तो आप -7 + 5, तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपका आंसर आएगा 2। तो अब आप देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में विच नंबर इज बिगर, 7 इज बिगर, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -7 एंड +7। ये तो बच्चों वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी आपके पास सेम नंबर है और प्लस माइनस में है तो उन दोनों को आप कट कर दीजिए, आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। 7 रुपए थे, 7 रुपए आपकी बहन ने आपसे मांग लिए, तो कितने बचे, अब आपके 0 रुपीज बचे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 14, 14 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 12, और साइन किसका बड़ा है, पॉजिटिव का, तो यहाँ पर +12 आ जाएगा, ठीक है। 3 फ्रॉम -17, तो 3 में -17 में से मुझे -3 करना है, माइनस माइनस प्लस, मेरा आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। और साइन किसका आएगा, विच वन इज बिगर, विच इज -20। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। नाउ यू हैव -15 -3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6 + 15, आपका आंसर आ जाएगा 21। साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। 3 और 3 सेम नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में, कैंसिल कर दो, सिर्फ यहाँ पर अब आपका -2 बचेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्लस माइनस को बार बार करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस और प्लस में माइनस होगा और साइन उसका आएगा जो कि बड़ा है। और आपको जब बड़ा आप देख रहे हो ना, तो एब्सोल्यूट फॉर्म में देखना है। जो भी हमने ऊपर देखा था कि माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं, प्लस वाले, वो बात ठीक है, बट जब आप ये ऑपरेशंस अप्लाई करोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना है। So I hope students this chapter is clear to you. Now I'll meet you in your next chapter. Now I'll meet you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.